ਵੈਲਕਮ ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਮਨੀ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਐਂਡ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਮਨੀ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਸੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਆਇਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨੋਟਸ ਤੇ ਕੁਆਇਨਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਵੈਲਿਊ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਵੈਲਿਊ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਮੋਡਿਟੀ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਮਨੀ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨੀ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਮਨੀ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਕ ਕੁਆਇਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੁਆਇਨ। ਹੁਣ ਇਹ 1 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁਆਇਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 1, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਗੀ ਇਸ ਦੀ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ। ਤਾਂ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਆਇਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੋ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, that is called face value of money, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਮਨੀ ਜਾਂ ਮਨੀ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਮਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ਼ੂਇੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਉਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੋਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਆਇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤੀ ਆ, that is ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਗੀ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਆਫ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਨੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਮਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਮੋਡਿਟੀ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਮਨੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੰਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਆਇਨ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਆਇਨ ਕਿਸੇ ਮੈਟਲ ਤੋਂ ਬਣਿਆ। ਉਸ ਮੈਟਲ ਦੀ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਉਸ ਮੈਟਲ ਦੀ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਇਸ ਕੁਆਇਨ ਦੀ ਇੰਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਵੈਲਿਊ ਕਹਿਲਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਆਇਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੈਟਲ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੈਟਲ ਦੀ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਮੈਟਲ ਉਸ ਕੁਆਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਮੋਡਿਟੀ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਮਨੀ ਜਾਂ ਇੰਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਮਨੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜੋ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਜੋ ਬੱਚੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਆਇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਮੈਟਲ ਤੋਂ ਉਹ ਬਣਿਆ ਉਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆਪਸ 'ਚ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰਮਲੀ ਇਨ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜੀ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਹਾਇਰ ਹੋਊਗੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਮਨੀ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਵੈਲਿਊ ਤੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਅਗਰ ਇੰਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਮਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕੁਆਇਨ ਦੀ ਇੰਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਮੈਟਲ ਤੋਂ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕੁਆਇਨ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਸ ਮੈਟਲ ਦੀ ਵਰਥ ਜਿੰਨੀ ਮੈਟਲ ਇਸ ਕੁਆਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਕੁਆਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਸ ਮੈਟਲ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕੁਆਇਨ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ 10 ਰੁਪੀਜ਼ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੀ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 1 ਰੁਪਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਇੰਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਵੈਲਿਊ ਹਾਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਹੈ ਜੀ ਫਿਰ ਇਸ ਕੁਆਇਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਜ਼ ਅ ਮਨੀ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੂਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਕਮੋਡਿਟੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੂਗਾ। ਉਹ ਜਿਸ ਪਰਸਨ ਕੋਲੇ ਵੀ ਇਹ ਕੁਆਇਨ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਇਸ ਕੁਆਇਨ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਕਮੋਡਿਟੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਸੇਲ ਕਰੂਗਾ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ 10 ਰੁਪੀਜ਼ ਗੈਟ ਕਰੂਗਾ, ਠੀਕ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੇਅਰਲੀ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਲਵਰ ਤੇ 골ਡ ਕੁਆਇਨਸ ਦੇ ਕੇਸਸ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ 골ਡ ਕੁਆਇਨ ਸਿਲਵਰ ਕੁਆਇਨ ਦੀ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 골ਡ ਤੇ ਸਿਲਵਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹਾਈ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਸ ਕੁਆਇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਛਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਨ। ਇਹ ਰੇਅਰ ਕੇਸਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੰਸੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਇੰਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਘਟ ਨਾ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਸ ਮਨੀ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਮਨੀ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਐਜ਼ ਅ ਕਮੋਡਿਟੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ
बहुत पहला कुछ केसेस होए सीगे स्टूडेंट्स जिथे ਜਿਹੜੇ कॉइन ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਕਮੋਡਿਟੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕॉइन्स ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਲ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਟੀਲ ਦੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ठीक है, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕਿਸੇ भी कॉइन की जो इंट्रेंसिक वैल्यू है वो फेस वैल्यू तो एक्सीड ना करे। ठीक है, इसके संबंध स्टूडेंट्स एक ग्रेशम लॉ भी है बट वो फिलहाल साडा टॉपिक नहीं है, वो फिर तुहानू किसी ने एक्स्ट्रा लैक्चर च करवा देंगे। ठीक है जी, लो जी हुण स्टूडेंट तुहाडे नाल डिस्कस करनी है मैटैलिक मनी दे अंदर दो असी केस डिस्कस करांगे, फुल बॉडीड कॉइन्स जिन्होंने स्टैंडर्ड कॉइन्स भी कहते हैं ते टोकन कॉइन्स भी। तो जिहड़ा ये स्टूडेंट असी तुहाडे नाल टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं इस बड़ी आसान जी डिस्कशन है। जिहड़े टोकन कॉइन्स हुंदे है, टोकन कॉइन्स असी उन्हां कॉइन्स नूं बोलांगे जिन्हां दे केस दे विच फेस वैल्यू ऑफ मनी ज़्यादा होएगी इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ मनी तो, उन्हां नूं असी क्या बोलांगे टोकन कॉइन्स, यानी कि फेस वैल्यू ज़्यादा होएगी इंट्रिंसिक वैल्यू तो। ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ स्टूडेंट्स फुल बॉडीड कॉइन्स स्टैंडर्ड कॉइन्स इन्हां दे केस दे विच फेस वैल्यू ते इंट्रिंसिक वैल्यू सेम हुंदी है, इक्वल हुंदी है, उन्हां नूं असीं क्या बोलते हैं फुल बॉडीड कॉइन्स। हुण नाउअडेज ਜਿਹੜੇ कॉइन्स इशू हुंदे ने वो टोकन कॉइन्स की कैटेगरी च आउंदे ने। ठीक है जी, लो जी उस तो बाद स्टूडेंट्स एक कॉन्सैप्ट आ रहा है क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी एक वो मनी जिस मनी के केस दे विच जिहड़ी फेस वैल्यू है वो ज़्यादा होगी इंट्रिंसिक वैल्यू तो। ठीक है, कमोडिटी वैल्यू तो। जिवें स्टूडेंट्स इत्ते एग्जाम्पल जिहड़े करंसी नोट्स ने, साडे कोल करंसी नोट्स हुंदे ने, उन्हां दे उपर लिखिया तो 100 हुंदा है, 500 लिखिया हुंदा है, 2000 भी लिखिया हुंदा है। बट अगर असी जिस मटीरियल तो बनते हैं अगर उस मटीरियल की एज अ कमोडिटी आप मार्केट च वैल्यू देखिए तो मच लैसर होंदी है उन्हां दी फेस वैल्यू तो वो सारी जिहड़ी मनी है खास तौर पर जिहड़े करंसी नोट्स ने वो क्रेडिट मनी की कैटेगरी च आउंदे हैं। ठीक है जी, लो भी स्टूडेंट्स हुण तुहाडे नाल एक होर इस तो अगला टॉपिक जिहड़ा तुहाडे नाल शेयर करना है दैट इज फीएट मनी। फीएट मनी ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स तुहाडे नाल असीं फीएट मनी डिस्कस करांगे और फीएट मनी नूं डिस्कस करने दे लई स्टूडेंट्स तुहानूं मैं पहलां कोई एक चीज़ दिखाउणा चाहूँगा। जिवें तुसीं नोटिस कीता, आ लो जी, जिवें स्टूडेंट्स तुसीं नोटिस कर रहे होंगे तुहानूं विजिबल होगा, मैं तुहानूं एक 20 रुपये का नोट दिखा रहा। ठीक है जी, ये 20 रुपये का नोट दिखा रहे हैं। ठीक है जी, इस तरह ही साडी कंट्री च 50 रुपये का, 100 का, 500 का, 2000 का करंसी नोट चलता है। फीएट मनी इस दे नाल लिखा है ऑर्डर मनी। फीएट मनी और ऑर्डर मनी वो मनी हुंदी है जी जिहड़ी गवर्नमेंट दे ऑर्डर नाल चलदी है। हुण स्टूडेंट साडे कंट्री दे जिहड़े रुपीस चलदे ने, नोट करंसी नोट चलदे ने, ये ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट नाल चलदे है। और इन्हां दी खासियत की हुंदी है? इन्हां दी खासियत ये हुंदी है कि इन्हां दे पिछे कोई बैकअप रिजर्व नहीं हुंदा और इस करंसी की जिहड़ी फीएट मनी हुंदी है उहदी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू भी नहीं हुंदी। हुण एक कागज़ का टुकड़ा है स्टूडेंट्स, अगर मान लो ठीक है ये उपर 20 रुपये लिखा है, ये फेस वैल्यू होगी। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ठीक है तो आरबीआई, नॉर्मली आरबीआई सेंट्रल बैंक ऑफ जिहड़ी हैगी है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जिवें आरबीआई है, आरबीआई जिन्ना देर तक इसनूं 20 रुपये की पावर दे रही है, लीगल टेंडर दे रही है। लीगल टेंडर स्टूडेंट्स बस जस्ट तुहाडे नाल डिस्कस करूंगा मैं हुणी, उन्नी देर तक स्टूडेंट्स से 20 रुपये का नोट चलूगा। अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कह दे कि आज तो बाद ये नोट नहीं चलेगा तो कागज़ का टुकड़ा रह जाएगा और इसकी कोई वैल्यू नहीं। तुसीं फिर इस कागज़ तो की करोगे? इस कागज़ का की कर सकते हो? इस कागज़ की इटसेल्फ कोई वैल्यू है ही नहीं। इस करके फीएट मनी वो मनी है जो it is money backed with order or authority of the government with no backup reserves, it has no intrinsic value, for example currency notes। ठीक है जी, और इन्हां केसेस दे विच फीएट मनी दे केसेस च जिहड़ी फेस वैल्यू ऑफ मनी हुंदी है जी वो बहुत हायर हुंदी है कमोडिटी वैल्यू तो। और जिहड़ी फीएट मनी है ये अपनी वैल्यू कित्थों लैंदी है?
गवर्नमेंट तो लैंदी है। द वैल्यू ऑफ करंसी इज ड्राइव्ड फ्रॉम दी गारंटी प्रोवाइडेड बाय दी इशूइंग अथॉरिटी। जेडी अथॉरिटी नूं इशू करदी है ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਨੋਟ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਚਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇਟ ਕੈਨ ਬਾਏ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਫ ਵਰਥ ₹20। ਅਗਰ 100 ਰੁਪੀਸ ਦਾ ਨੋਟ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਰਬੀਆਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਸ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰੈਗੂਲੇਟ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ कि तुसी बई जिहड़ा वो करंसी नोट आ उस करंसी नोट दे उपर जो भी प्रिंट किया होया है उस करंसी नोट नाल जिन्नी भी वैल्यू दे उपर प्रिंट कीती है तुसी अपनी इकोनॉमी च उन्नी वर्थ दियां गुड्स एंड सर्विसेज उस नोट नाल बाय कर सकते हो। ठीक है जी। तो हुण देखो स्टूडेंट्स आ भी पढ़ाना सुनो, कहना एवरी करंसी नोट्स बियर्स ऑन इट्स फेस अ प्रॉमिस फ्रॉम गवर्नर ऑफ आरबीआई दैट इफ, ठीक है जी, इफ anyone produces notes to RBI or any other commercial bank, RBI will be responsible for giving the person purchasing power equal to the value printed on the note। इन्हों मैं बिल्कुल सिंपल भाषा दसदा, जिन्नी इस दे ऊपर प्रिंट की हुई है वैल्यू, RBI सोनू ये पावर दे रहा है कि भाई योर नोट कैन बाय गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ वर्थ ₹20 विद दिस नोट। ठीक है जी। तो हुण स्टूडेंट्स एक गल आई सीगी जिन्हों मैं हुण कंप्लीट करूँगा, लीगल टेंडर नाल तुहाडे नाल डिस्कस कर रहा सी मैं, तो मैं पूरा डिस्कस करूँगा इसे ही लैक्चर च, पर होप सो तुहानूं शायद फिएट मनी जिहड़ी है वो समझ आ गई होगी। ठीक है जी। तो हुण स्टूडेंट्स एक टाइप आउंदी है फिड्यूशरी मनी। तो स्टूडेंट्स फिड्यूशरी मनी की है, जिहड़ी मनी पेयर ते पेई दे ट्रस्ट ते डिपेंड करती है। एग्जाम्पल चेक। ठीक है जी। दिस मनी इज एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड द पेई। हुण चेक है स्टूडेंट्स, मान लो सपोज कोई परसन, ठीक है जी, मैं उस परसन को सर्विस दी, वो परसन मैंने चेक दे रहा है, मैं उस तो चेक अपनी सर्विस के लिए चेक लै भी सकदा ते नहीं भी लै सकदा। अगर मैंने लगता कि वह बंदा ट्रस्ट करने के लायक है तो मैं उस तो चेक लै लूँ, जे मैंने लगता कि वह बंदा डिफॉल्ट कर सकता है दैन मैं उस तो चेक नहीं लाऊंगा। सो चेक एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज हो सकता जो दोनों पार्टीज एक दूसरे के उपर ट्रस्ट करन। ठीक है जी। सो इस करके चेक जिहड़ा हैगा या फिड्यूशरी मनी इज नॉट अ ऑफिशियल मनी, इट इज नॉट अ ऑफिशियल मनी, इट can be used as money if two parties trust each other, for example check। ठीक है जी। हुण स्टूडेंट्स तुहाडे लई एक इंपॉर्टेंट नोट है, साडी कंट्री दे विच दो एंटाइटीज ने जो कॉइन्स ते नोट इशू करदियां ने, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोले सिर्फ ₹1 नोट, ठीक है जी, क्लियर, ते कॉइन्स इशू करन दा पावर हैगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द कॉइनेज एक्ट 1909 दे इशूड ऑल कॉइन्स एंड ₹1 नोट, ₹1 दा नोट ते कॉइनेज एक्ट दे अकॉर्डिंग कॉइन्स इशू कर सकती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बट आरबीआई दा जो एक्ट है 1934 वो आरबीआई नूं इंपावर करता है कि आरबीआई इस तो इलावा जिन्ने भी नोट्स ने वो आरबीआई इशू कर सकती है। ठीक है जी। ₹5 का, ₹2 का, 10 का, 20 का, ₹50, ₹100, ये सारे नोट आरबीआई इशू कर सकती है। ठीक है। आरबीआई इंपावर्ड है, लीगली इंपावर्ड है। ठीक है जी। ओके जी। एक तुसी स्टूडेंट जिहड़ा ₹1 नोट वेख्या होगा, वो ₹1 नोट नूं ध्यान नाल वेखियो, तुहानूं एक अच्छी चीज़ नज़र आऊगी। उस नोट दे उपर गवर्नर ने लिखिया होगा, उस नोट दे उपर लिखिया होगा फाइनांस सैकरेटरी। ठीक है जी। ये फर्क आ जिस तो पता चलता कि ₹1 नोट जिहड़ा है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू किया है। ठीक है जी। और जिहड़े नोट्स उपर आरबीआई दे गवर्नर दे साइन होणगे, ऑल नोट्स
which are signed by the governor, RBI governor, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ RBI ਨੇ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ, ਲੀਗਲ ਟੈਂਡਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਮੀਡੀਅਮ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਪੀ ਇਜ਼ ਅ ਲੀਗਲ ਟੈਂਡਰ, ਜਿਹੜਾ ਰੁਪੀ ਆ ਉਹ ਲੀਗਲ ਟੈਂਡਰ ਹੈ। ਲੀਗਲ ਟੈਂਡਰ मतलब ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਮੀਡੀਅਮ ਆਫ ਐਕਸਚੇਂਜ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਆ 20 ਰੁਪੀ, ਇਹ ਕੋਲ ਲੀਗਲ ਟੈਂਡਰ ਹੈ, ਇਸ ਕੋਲ ਲੀਗਲ ਟੈਂਡਰ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਮਨੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। You can use this money anywhere in the India for buying goods and services। ठीक है जी, तो ये होगी जी थोड़ी स्टूडेंट्स लीगल टेंडर, जिन्होंने असी ऑफिशियल मीडियम ऑफ मनी भी बोलते हैं। कहने लीगल टेंडर इज लीगल स्टेटस गिवन टू करेंसी नोट बाय RBI और सेंट्रल गवर्नमेंट दैट इट कैन बी यूज्ड एज मीडियम ऑफ पेमेंट। तुसी जेडी करेंसी कोले लीगल टेंडर हुंदा ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ऑफिशियली लीगली एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज कर सकते हो। ठीक है जी। हुण स्टूडेंट्स ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ याद होगा कि साडी कंट्री ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡੀਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਤੇ 1000 ਦੇ ਨੋਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਡੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫॉर ਬਾਇੰਗ फॉर द पेमेंट परपज वो नोट चलने बंद हो गए। वो नोट नहीं चले। क्यों नहीं चले? जदों कि नोटां दे उपर लिखिया तो होया सी, हुण 500 दे तुहाडे कोल किन्ने नोट होणगे पुराने नोट, उन्हां दे उपर 500 लिखिया तो होया सी, बट फिर क्यों नहीं चले? वो पता क्यों नहीं चले? क्योंकि वो फीएट मनी सी। वो फीएट मनी दे कोले उन्नी देर तक पावर रहिंदी है जिन्नी देर तक गवर्नमेंट उहनूं जां जिहड़ी तुहाडी सेंट्रल बैंक है उस नूं वैलीडेट करदी है, उसनों लीगल टेंडर प्रोवाइड करती है। जिन्नी देर तक उस करंसी को लीगल टेंडर हुंदा है उन्नी देर तक वो करंसी नूं तुसीं उन्हां नोट्स नूं तुसीं कंट्री दे विच किते भी यूज कर सकते हो जिन्नी उहदे उपर प्रिंटड वैल्यू है। जिवें इत्थे इस दे उपर 20 प्रिंटड है, तो जे 200 प्रिंटड है तो तुसीं उस नोट नूं 200 वर्थ दियां गुड्स एंड सर्विसेस बाय करन लई यूज कर सकते हो किते भी इंडिया दे विच। बट डीमोनेटाइजेशन की कीता, साडे कोल नोट तां सीगे बट गवर्नमेंट ने उहदा लीगल टेंडर खत्म करता। 500 ते 1000 दे नोट्स का लीगल टेंडर खत्म करता। मीनस गवर्नमेंट ने कहता कि अज तो बाद ये 500 ते 1000 दे जिहड़े नोट्स ने ये नहीं चलणगे। उन्हां 500 ते 1000 दे नोट्स कोले जो लीगल स्टेटस सी जिसकी वजह करके वो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज हो रहे सी, वो इशूइंग अथॉरिटी ने विदड्रॉ कर लिया। ठीक है जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन्हें विदड्रॉ कर लिया। जो विदड्रॉ कर लिया तो जिहड़ा उन्हां कोले लीगल टेंडर सी वो खत्म हो गया। दैट्स वाई करेंसी क्या होगी? यूजलैस। ठीक है जी, तो समझ आई, लीगल टेंडर ही है जिसकी वजह करके कोई करेंसी गुड्स एंड सर्विसेस नूं बाय कर पाउंदी है। ठीक है जी। लीगल टेंडर स्टूडेंट्स दो तरह का हुंदा है, अनलिमिटेड ते लिमिटेड। जिहड़ा अनलिमिटेड लीगल टेंडर हुंदा, जिन्ने भी नोट्स हुंदे ने उन्हां कोले अनलिमिटेड लीगल टेंडर हुंदा है। अनलिमिटेड लीगल टेंडर का मतलब कि स्टूडेंट्स कोई लिमिट नहीं। अगर तुसी किसी की कोई पेमेंट करनी आ, ठीक है, तो अगर तुसी वो पेमेंट्स अनलिमिटेड लीगल टेंडर जेडी करंसी कोले जेडे नोट्स कोले अनलिमिटेड लीगल टेंडर हैगा, जिवें लगभग सारे नोट्स कोले अनलिमिटेड लीगल टेंडर हैगा, तो जिन्नी मर्जी पेमेंट तुसी इन टर्म्स ऑफ नोट्स कर सकते हो। जेड़ा बंदा सामने वाला रिसीव कर रहा उसनूं ना नहीं कर सकता। ठीक है। जिहड़ी लिमिटेड हुंदी है लिमिटेड लीगल टेंडर हुंदा क्वाइंस कोले। तुसी क्वाइंस दे नाल किसी बंदे नूं एक लिमिट तक ही पेमेंट कर सकते हो, उस तो उपर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल इंडिया दे विच अगर तुसी किसी नूं 50 पैसों के नाल पेमेंट कर रहे हो, तुहाडे कोल 50 पैसा दे क्वाइंस ने, तो 10 रुपीज़ तो ज़्यादा तुसी उस किसी नूं पेमेंट नहीं कर सकते 50 पैसा दे क्वाइंस नाल। सपोज तुसी क्या कीता कि लाइक किसी शॉप ते गए तुहाडा बिल 500 रुपीज़ का बन गया और तुसी उस परसन नूं थैली पकड़ाती
50 पैसा दे कॉइन्स दी थैली पकड़ाती जो कि 500 दे सीगे, तो सामने वाला शॉपकीपर रिफ्यूज कर सकता है, और उहदा रिफ्यूज करना बिल्कुल लीगली सही है, बिकॉज एज पर दी लेटेस्ट नोटिफिकेशन 50 पैसा दे नाल मैक्सिमम 10 रुपीज तक दी पेमेंट की जा सकती है, क्योंकि 50 पैसा कोले अनलिमिटेड लीगल टेंडर नहीं है, लिमिटेड लीगल टेंडर है। इत्थे देखो स्टूडेंट्स, अनलिमिटेड लीगल टेंडर इज लीगल स्टेटस गिवन टू करेंसी नोट दैट इट कैन बी यूज्ड एज मीडियम ऑफ पेमेंट ऑफ एनी अमाउंट। ठीक है, जिन्ने भी नोट्स ने साडी कंट्री दे विच ਜਿਹੜੇ कि आरबीआई द्वारा इशू होंदे ने, सब कोले अनलिमिटेड लीगल टेंडर हुंदा है। लिमिटेड लीगल टेंडर, दिस इज अ फॉर्म ऑफ मनी विच कैन बी पेड इन डिस्चार्ज ऑफ डेट अप टू अ सर्टन लिमिट। तुसीं इहनूं एक सर्टन लिमिट तक ही यूज कर सकते हो, उस तो उपर नहीं यूज कर सकते। ठीक है, और उस तो उपर लिमिट दे उपर अगर तुसीं पेमेंट करते हो तो सामने वाला परसन रिफ्यूज कर सकता। तो साडे कॉइन्स ने उन्हां कोले लिमिटेड लीगल टेंडर है। तो देखो स्टूडेंट्स, मैं लिखा हुआ है, देखो सब तो पहले इस आ जाओ, अ हाफ रुपी कॉइन फॉर एनी सम नॉट एक्सीडिंग 10 रुपीज, 10 रुपए तो ज्यादा नहीं कर सकते। एनी अदर कॉइन फॉर एनी सम नॉट एक्सीडिंग, ठीक है जी। इतने प्लीज स्टूडेंट्स मैं तुहानूं क्लैरीफाई करदा, मैं तुहानूं पहला आ चीज पढ़ा दिना, फिर ए जो इन्हां दोनों कैटेगरी कंप्लीट हो गए, ठीक है, बाकी इस कैटेगरी च आ जाएंगे। तो इत्थे आओ, अ कॉइन ऑफ एनी डिनोमिनेशन नॉट लोअर दैन 1 रुपी फॉर एनी सम नॉट एक्सीडिंग 1000 रुपी। यानी कि 1 रुपी कॉइन और 1 रुपी तो जिहड़े वड्डे कॉइन ने, 5 रुपी कॉइन है, 10 रुपी कॉइन है, तुसीं उन्हां दे नाल 1000 तो ज्यादा पेमेंट नहीं कर सकते। ठीक, और जिहड़ा हाफ रुपी कॉइन है 50 पैसा है, उहदे नाल तुसीं 10 रुपए तो वध पेमेंट नहीं कर सकते। जिहड़े बाकी कॉइन्स बचे जिवें 25 पैसे 20 पैसे, इन्हां दे नाल तुसीं 1 रुपए तो वध पेमेंट नहीं कर सकते। ठीक है जी। ए स्टूडेंट्स जिहड़ा हैगा ए द कॉइन्स इशूड अंडर द अथॉरिटी ऑफ सैक्शन 4 शैल बी अ लीगल टेंडर इन पेमेंट इन केस ऑफ, ए प्लीज दस्सिया होया स्टूडेंट्स कि जिहड़े कॉइन्स आ उन्हां दे उपर जिहड़ा लिमिटेड लीगल टेंडर है वो किन्ने किन्ने दा है, तो उस मैं एक्सप्लेन कीता है। जिवें कि 50 पैसा दी मैं एग्जांपल वार-वार ले रहे हैं, तो 50 पैसा नाल यू कैन पे, ठीक है, मैक्सिमम अप टू 10 रुपीज। ठीक है जी। लो जी स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ पेपर मनी, हुण इत्थे पेपर मनी की गल चल रही है। पेपर मनी स्टूडेंट्स एक होंदी है रिप्रजेंटेटिव पेपर मनी। रिप्रजेंटेटिव पेपर मनी क्या होंदी है स्टूडेंट्स? रिप्रजेंटेटिव पेपर मनी दे लई मैं तुहानूं एक एग्जाम्पल प्रेजेंट करूंगा, तो तुसीं वो एग्जाम्पल जिहड़ी हैगी उहनूं समझण दी कोशिश करियो। लो जी स्टूडेंट्स, उन नाल जिहड़ी रिप्रजेंटेटिव मनी की गल चल रही सी, तो नोटिस करो क्या होंदी है। रिप्रेजेंटेटिव पेपर करंसी। तो स्टूडेंट जिहड़ी रिप्रजेंटेटिव पेपर करंसी है ना, बेसिकली ये रिप्रजेंट कर रही होंदी है गोल्ड नूं, सिल्वर नूं। ठीक, जिवें एग्जाम्पल दे लो, मैं दसदा, मान लो स्टूडेंट्स एक जस्ट एग्जाम्पल के थ्रू प्रेजेंट करूँ कि किस तरह काम करती है। मान लो जी अपने को एक ना 10 ग्राम ऑफ गोल्ड है, 10 ग्राम ऑफ गोल्ड है, वो 10 ग्राम ऑफ गोल्ड नूं असीं मूव नहीं करवा रहे, मतलब कि कोई 10 ग्राम ऑफ गोल्ड एक जगह ते पिया रहे, तो उन्होंने रिप्रजेंट करने वास्ते ना असीं क्या कीता, एक मान लो पेपर स्लिप तैयार कर ली, एक पेपर स्लिप। ठीक है जी। हुण जिहड़ी वो पेपर स्लिप आ वो किसनूं रिप्रजेंट कर रही है? 10 ग्राम ऑफ गोल्ड नूं, यानी कि वो पेपर स्लिप 10 ग्राम ऑफ गोल्ड नूं रिप्रजेंट कर रही है। ठीक है जी। हुण अगर सपोज ए परसन है, ए परसन कोले पेपर स्लिप आ, तो हुण उन्हें बी परसन नूं कोई पेमेंट करनी सी, मान लो जी वो पेमेंट वो 10 ग्राम ऑफ गोल्ड दे इक्विवेलेंट है, तो हुण इत्थे गोल्ड नहीं एक्सचेंज होऊगा,
ਜਿਹੜੀ ਆ पेपर स्लिप ਜਿਹੜੀ कि 10 ग्राम ऑफ गोल्ड ਨੂੰ रिप्रेजेंट कर रही है, ਜਿਹੜੀ कि ए परसन ਕੋਲੇ है, ए परसन बी ਨੂੰ ਦੇ ਦੂਗਾ ਇਹ पेपर स्लिप। ਤਾਂ ਇਹ पेपर स्लिप बी ਕੋਲੇ ਆ ਗਈ, बी मान लो फिर C ਨੂੰ ਇਹ पेपर स्लिप ਦੇ ਦਿੰਦਾ मान लो ਕਿਸੇ पेमेंट वास्ते। इन दिस वे ਜਿਹੜੀ ਇਹ पेपर स्लिप ਆ ਜਿਹੜੀ कि गोल्ड ਨੂੰ रिप्रेजेंट कर रही है, 10 ग्राम ऑफ गोल्ड ਨੂੰ रिप्रेजेंट कर रही है, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ पेपर स्लिप ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਊਗਾ रिप्रेजेंटेटिव पेपर करेंसी। ਤਾਂ ਹੁਣ ਐਕਚੁਅਲੀ रिप्रेजेंटेटिव पेपर करेंसी ਚ ਕੀ ਹੈ, बैक एंड ਦੇ ਉੱਪਰ गोल्ड ਤੇ सिल्वर ਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ गोल्ड ਤੇ सिल्वर ਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵ बैक एंड ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ 골ਡ ਤੇ ਸਿਲਵਰ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੇਪਰ ਸਲਿਪਸ ਜਿੰਨੇ ਜਿੰਨੇ 골ਡ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹ ਐਜ਼ ਅ ਮਨੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ 골ਡ ਦੀ, 골ਡ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲਿੱਪ ਆ ਉਹ ਮੂਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪੇਪਰ ਸਲਿੱਪ ਜਿਸ ਵੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਆ ਕਿ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਆ 10 ग्राम ऑफ गोल्ड। जिमें कि तुसी किसी गोल्ड स्मिथ कोले गए, तुसी उस गोल्ड स्मिथ तो गोल्ड ले लिया, मान लो 100 ग्राम गोल्ड ले लिया जी, 100 ग्राम गोल्ड लग गया, ले लिया, थोनू लग्या कि यार भी असी गोल्ड कित्थे रखाएं करे, साडे कोल तां दिक्कत आ सकती है, कोई चोरी कर सकता है, तो तुसी उस गोल्ड स्मिथ नू क्या कि जी तुसी ये गोल्ड अपने कोल रख लो, साडा गोल्ड अपने कोल रख लो, बट प्रूफ के तौर ते कि एक जो गोल्ड साडा है ਉਹਦਾ कोई प्रूफ दो। तो उस गोल्ड स्मिथ ने सुनो एक स्लिप देती जिस दे ऊपर सारा मेंशन करता कि दिस स्लिप रिप्रेजेंट्स योर गोल्ड ऑफ 100 ग्राम गोल्ड। हुण तुसीं ये स्लिप जदों भी गोल्ड स्मिथ को लेके जाओगे वो तुहाडा गोल्ड तुहानूं वापस दे दूगा। डन। मेरा कहने तो मतलब ये आ कि रिप्रेजेंटेटिव पेपर करंसी दे विच ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ पेपर करंसी ਉਹ बेसिकली गोल्ड ते सिल्वर ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, बट गोल्ड ते सिल्वर नहीं मूव कर रहे होंगे, वो स्लिप के बेसिस ते ही सारी जी मतलब कोई अगर तुसीं कोई पेमेंट करनी है या कुछ रसीट लैनी है वो उपर ही हो ही जाएगा। ठीक है जी, दैट इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव पेपर करंसी। तो हुण स्टूडेंट्स ये चीज़ यूज़ कित्थे हुई, ये यूज़ हुई अमेरिका दे विच। अमेरिकन गवर्नमेंट यूज्ड गोल्ड एंड सिल्वर सर्टिफिकेट्स एज रिप्रेजेंटेटिव मनी फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड। चलो ठीक है, शॉर्ट पीरियड लिए यूज़ किए बट उन्होंने यूज़ किए। होप सो तुहानूं ये समझ जरूर आ गया होगा कि रिप्रेजेंटेटिव मनी है क्या। रिप्रेजेंटेटिव मनी बेसिकली गोल्ड ते सिल्वर नूं रिप्रेजेंट करने वाला एक पेपर आ, ठीक है, और उस पेपर की वैल्यू अपनी कोई वैल्यू नहीं, वो बस किनू रिप्रेजेंट करी जाता, जो गोल्ड है, जो भी वो गोल्ड है उन्होंने रिप्रेजेंट करता है। ठीक है जी, चलो इत्थे पढ़ो जी, कहते पेपर मनी वाज यूज्ड टू सर्व म्योरली एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गोल्ड और सिल्वर लाइंग इन द रिजर्व फंड टू अवॉइड द लॉस ऑफ वियर एंड टीयर ऑफ क्या भी प्रेशियस मैटल। यानी कि रिप्रेजेंटेटिव मनी दे विच ਪ੍ਰੈਸ਼ੀਅਸ ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ मूव ना करवा के ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਸਲਿੱਪ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਪੇਪਰ ਮਨੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਲਓ ਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇੱਕ वन आ गई कन्वर्टीबल पेपर मनी। कन्वर्टीबल पेपर मनी व्हाट इज कन्वर्टीबल? इत्थे कन्वर्टीबल का मतलब ये होगा जिवें कि स्टूडेंट्स जिहड़ा मेरे को नोट है, दिस इज नॉट कन्वर्टीबल, ये कन्वर्टीबल नहीं है। अगर मैं लेके जाऊंगा ना आरबीआई को लेके आ लो 20 रुपये का नोट, वो मैंने 20 रुपये का नोट वापस कर देंगे। बट स्टूडेंट्स कन्वर्टीबल पेपर मनी दे विच क्या हुंदा सी, पेपर कन्वर्टीबल पेपर मनी दे विच तुहाडी मनी जिहड़ी हुंदी सी ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ बैकअप हुंदा सी गोल्ड दा। और मान लो तुसी 10 रुपये नूं 1 ग्राम गोल्ड नाल अटैच करता, 10 रुपये इक्वलेंट टू 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। ठीक है जी, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਆ कि तुसी रेट फिक्स करती कि एट विच योर करेंसी विल बी एक्सचेंज फॉर गोल्ड। ठीक है जी, इनू कन्वर्टीबल
पेपर करंसी कहते हैं इस सिस्टम नूं, कन्वर्टीबल सिस्टम, जिस दे विच सेंट्रल बैंक तुहाडी करंसी दी वैल्यू नूं गोल्ड नाल अटैच कर दूगा कि हाँ जी, जिवें मेरी एग्जाम्पल जस्ट मैं हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल लै रहा सिंपल वे समझाने लई कि 10 रुपीज़ इज इक्वल टू 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। तो ये स्टूडेंट्स मैं पता एग्जाम्पल ही लै रहा क्योंकि तुहानूं भी पता है कि 10 रुपीज़ का 1 ग्राम गोल्ड, ठीक है, कोई दर्शन भी नहीं कराउंदा, दऊगा तो बहुत दूर की गल है, ठीक है। सो इन्ने अच्छे दिन हजे नहीं आए, ठीक है, इस करके तो प्लीज़ ये एग्जाम्पल है, ठीक है, इनू सीरीयसली ना लै जाओ कि 10 रुपये का 1 ग्राम गोल्ड, ठीक है। 10 रुपये का मान लो 1 ग्राम गोल्ड RBI ने अटैच करता, मतलब कि सपोज करो इस तरह होंगे, सेंट्रल बैंक कर दी है। अगर तुहाडे कोल 100 रुपीज़ ने, ठीक है, 10 रुपये का 1 ग्राम गोल्ड, ठीक है जी, ये रेट फिक्स करती क्योंकि इस सिस्टम च यही होंदा है। अगर तुसी 100 रुपये का नोट लैके जाओगे तो तुहानूं सेंट्रल बैंक 10 ग्राम गोल्ड दे दूगी क्योंकि तुहाडी करंसी कन्वर्टीबल है, क्योंकि वो चो ये प्रॉमिस होंदा है कि वो कन्वर्टीबल होगी, 10 रुपये का 1 ग्राम गोल्ड मिलूगा, ठीक है जी। कन्वर्टीबल पेपर मनी इज दैट मनी विच इज कन्वर्टेबल इनटू गोल्ड और सिल्वर, ठीक है, एट ऑप्शन ऑफ द होल्डर एट फिक्स रेट। फिक्स रेट जिहड़ी रेट फिक्स की हुई है, अगर मैं कराना चाहना कन्वर्ट तो करा लूंगा, नहीं कराना चाहता तो नहीं कराऊंगा। पेपर मनी इज बैक्ड बाय गोल्ड और सिल्वर दो नॉट सेंट परसेंट ऑन द assumption that all people will not demand gold or silver in exchange for paper money। ये तो नेचुरली सारे तो नहीं करवाते कन्वर्ट, है ना, ये चीज है। Public are insured by government that they can get gold or silver in exchange for paper notes anytime they so desire। तो वो जी करंसी होंगी है कन्वर्टीबल स्टूडेंट्स, वो किसी भी मैटल नाल अटैच की होंगी है फिक्सड रेट ते, और तुसी अपने करंसी नोट उस मैटल दे नाल की करवा सकते हो, कन्वर्ट करवा सकते हो। और ना फायदा ये होंदा है कि सम टाइम तुसी सोचते हो कि यार भी रुपये की वैल्यू तक बहुत घट रही है थोड़े करंसी नोट की, तो तुसी सोचते हो कि वो जी मैटल नाल अटैच किया होया है उस मैटल की वैल्यू सम टाइम ज़्यादा हो सकती है। उन दिस वे उस हालातों के विच ये काम होंदा है, ठीक है जी। तो चलो स्टूडेंट तुहाडे नाल ये लाइट जी डिस्कशन सी, इन्हां टॉपिक्स सी, इन्हां ते कोई ज़्यादा डिटेल डिस्कशन नहीं किया। +2 लैवल दे विच इन्हां दी हल्की हल्की सानू इन्फॉर्मेशन चाहिए है। होप सो तुहानू ये सारे कंसैप्ट समझ आ गए होणगे। और लास्ट वन जिहड़ा रह गया स्टूडेंट्स, दैट इज इनकन्वर्टिबल। इनकन्वर्टिबल नाम तो ही क्लियर है, दिस करेंसी इज इनकन्वर्टिबल बिकॉज नाउ आ डेज सारे जेडे सिस्टम ने वो इनकन्वर्टिबल ने, ठीक है। अगर तुम 20 रुपीज़ RBI को लेके जाओगे तो तुहानू कोई मैटल मूटल नहीं मिलने वाली, कोई गोल्ड नहीं मिलने वाला, बिकॉज दिस करेंसी इज इनकन्वर्टिबल, ठीक है। सो स्टूडेंट्स इनकन्वर्टिबल मनी केड़ी होंदी है विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू गोल्ड, मेटल, सिल्वर एटसेट्रा, ठीक है जी। तो इस स्टूडेंट्स हल्की अपनी डिस्कशन, होप सो क्लैरिटी होगी। तो नैक्सट लैक्चर च फिर स्टूडेंट्स ये अपना 3rd लैक्चर सी मनी चैप्टर का। हुण 4th लैक्चर दे विच तुहाडे नाल सप्लाई ऑफ मनी के उपर डिस्कशन होएगी, उहदे कंपोनेंट्स डिस्कस करांगे, फिर आपां करंसी नूं इशू करन दा की सिस्टम है उहदे उपर डिस्कस करांगे, दैन साडा ये चैप्टर ओवर होगा। थैंक यू बी।